Good afternoon and welcome to this teleconferencing of BSc HOT program. Friends, last time we have discussed the anatomy of the eye, and Dr. Neelam Asthana has told you in detail the anatomy of the eye. Today we will be going further from where she left last time. We will be just covering this BOS 003, that is ocular anatomy, physiology, biochemistry, but in this particular session of 45 minutes we will be covering ocular physiology and biochemistry, and she will be telling you about the physiology and biochemistry of the eye. And if there are certain questions, again my request to all of you will be that maybe towards the end of last 5-10 minutes, if there are certain questions, you keep your questions with you and then you can ask Madam. So, Dr. Neelam Asthana, welcome to this teleconferencing. Namaskar ji. Good afternoon to all of you. जैसे लास्ट टाइम हमने अपने एनाटॉमी के बारे में बताया था स्टूडेंट्स को, ऑकुलर एनाटॉमी के बारे में, तो उसी को आगे जारी करते हुए हम ऑकुलर फिजियोलॉजी और कैसे बायोकेमिस्ट्री में उसके बारे में हम बात करेंगे. इन लोगों का कुछ फीडबैक आया है हमारे स्टूडेंट्स का? हाँ, नहीं, वो इन लोगों का जो फीडबैक जो है पिछली बार वो बता रहे थे कि these teleconferencing sessions are very useful for them, and especially your sessions and Dr. Monica Chaudhary's session, they have been benefited a lot. So I think our purpose is basically to give them inputs regarding the as far as we can, so that they can understand they are reading their material, but they may find difficult in understanding. And there may be not some uniformity throughout the country. So in order to maintain that uniformity and to make the thing more clear and easier to understand. So we can start with that physiology of the eye. And when we talk about eye, then eyelids are the first part. So maybe you can we'll start with the eyelids. Can I have the slides? Eyelids, जैसे कि हम हर आंख में देखते हैं कि दो eyelids होते हैं, upper eyelid and the lower eyelid. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, eyelids का basic function है to protect the eyeball from heat, dust, external environment factors like radiation, excessive light, and any foreign particle that is coming towards the eye. And they help in maintaining the integrity of the tear film. ये किस तरह से करते हैं हमारे eyelids जो आंखों की प्रोटेक्शन है, उसमें blink सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक हमारा रिफ्लेक्स है. ब्लिंकिंग का मतलब ये है कि इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द eyelids. और मेन फंक्शन जो ब्लिंकिंग का है वो ये कि इट कीप्स द कॉर्निया मॉइस्ट एंड क्लीन. इट हेल्प्स इन द ड्रेनेज ऑफ द टीयर्स ऑन ए रेगुलर इंटरवल्स एंड इट एलिमिनेट्स द ब्लरिंग ऑफ इमेजेस. जो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देर तक फोकस करते हैं और ब्लिंक नहीं करते हैं तो हमारी टीयर फिल्म इवेपोरेट होती है और फिर हमें हल्की सी ब्लरिंग होती है. वो ब्लरिंग हमें तुरंत एक रिफ्लेक्स जगाती है कि प्लीज ब्लिंक एंड मेक द टीयर फिल्म यूनिफॉर्म वंस अगेन सो दैट यू कैन रीफोकस दैट ऑब्जेक्ट. तो ये ब्लरिंग जो है वो भी इसमें ब्लिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ये ब्लिंक इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. इट्स अ स्पॉन्टेनियस एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस एट अ रेगुलर इंटरवल व्हिच कीप्स अकरिंग, और वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी मैं बता देती हूँ आपको. ब्लिंक दो तरह के होते हैं. वन इज अ वॉलंटरी ब्लिंक एंड द अदर इज एन इनवॉलंटरी ब्लिंक. इनवॉलंटरी जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है या रिफ्लेक्स हो सकता है. Voluntary, as it suggests that it's a coordinated closure of both eyes done at will. Voluntary है तो हम जब चाहेंगे तभी बंद करेंगे. Spontaneous वो है जिसमें you have no control over it. It's a reflex. It keeps on happening all the time without any external stimulus. इसका जो regular एक normal rate है वो ये कि ज़्यादातर लोग 15 से 20 बार blink करते हैं 1 मिनट में. और जो दूसरा इनवॉलंटरी है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ब्लिंक, जो किसी भी डायरेक्ट स्टिमुलस की वजह से हम ब्लिंक करते हैं, जैसे कुछ आँख के पास आ रहा हो या अचानक कोई स्मोक आ जाए या कोई बहुत तेज लाइट आ जाए, वो सारे रिफ्लेक्सेस हमारे रिफ्लेक्स ब्लिंक में इंक्लूड किए जाते हैं. रिफ्लेक्स ब्लिंक के अपने अलग टाइप्स हैं, टैक्टाइल, ऑप्टिक, ऑडिटरी एंड स्ट्रेच. टैक्टाइल में इफ there's suddenly somebody is trying to touch your eye or some object is coming close to your eye, then the eyes will blink. This is the tactile reflex. The other is when you blink because of a bright light. This is known as optic reflex.
Sudden loud noise will cause an auditory reflex. Again, you will blink, or any tap or blow on the forehead will cause blink. Then, if suddenly something comes into the field of vision, then again the optic reflex, which is called as Menes reflex, that comes into play, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम इसके जरिए से मेलिंगरर्स को या जो झूठ मूठ ये कह रहे हैं कि हमें दिख नहीं रहा है, उन्हें हम पता लगाते हैं उनका। ये जो ब्लिंक्स आपने बताया डिफरेंट टाइप्स के, इनका कुछ सिग्निफिकेंस मतलब किस तरह से, किस सिचुएशन में किस तरह के ब्लिंक्स होते हैं? वो मैं वही एक्सप्लेन कर रही थी कि जब कोई चीज कुछ लगने लगता है आँख की तरफ, कोई चीज टच करने वाली होती है, तो हम जब आंखें ब्लिंक करते हैं उसको हम टैक्टाइल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसी तरह से जो कुछ सडनली आंख में दिखाई दे हमें, उसको हम ऑप्टिक कहते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा रहा है। सडन नॉइज आती है तो हमारे कानों के थ्रू जाता है और हम ब्लिंक करते हैं, या कोई टैप करे या अचानक आपके सिर पे कोई हाथ मारे तो आप ब्लिंक करते हैं, ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स होता है। फिर आईलिड मूवमेंट्स के बारे में, ओपनिंग ऑफ द आईलिड इज बिकॉज ऑफ द लिवेटेड पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। ये जो मसल लास्ट टाइम आपने जो बताया था, जी, जो आईलिड के मसल्स हैं उनके एनाटॉमी चूंकि हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ ताकि जगह कम खर्च हो। LPS इज लिवेटेड पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, present in the upper lid, supplied by the third nerve, and there is another muscle which is supplied by the sympathetic nerves, is the Muller muscle. ये दोनों मसल्स का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है जो हमारे आईलिड को खोलता है। जो फ्रंटालिस मसल है, which is present in the forehead, if you try to raise your eyebrows, you see आपकी आईज थोड़ी और ज्यादा खुल जाती हैं, तो फ्रंटालिस मसल थोड़ा सा एलिवेशन ऑफ आईलिड्स को हेल्प करती है। और जब हमें बहुत ज्यादा जोर से आंख खोलनी हो तो हम अक्सर फ्रंटालिस को यूज करके बिल्कुल ग्लेयर करते हैं या जोर से आंख खोल के देखते हैं। क्लोजिंग इज डन बाय द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल विच इज सप्लाइड बाय द 7th नर्व। ऑर्बिकुलरिस के अपने 3 पार्ट्स हैं, वो सब आपने एनाटॉमी में कवर कर लिया है। पैल्पेब्रल फिशर जिसको हम कहते हैं, ये वो एरिया है हमारी आई का जो एक्सपोज रहता है बिटवीन द अपर एंड द लोअर आईलिड, जब हम नॉर्मली आंख खोलकर देख रहे होते हैं। पैल्पेब्रल फिशर नॉर्मली कितना फुट विड्थ होती है, कौन सी बीमारी में घटता है, कब बढ़ता है, दैट यू विल लर्न इन लेटर क्लासेस। स्पॉन्टेनियस ब्लिंक जिस वक्त हम यूजुअली जो हमारा हो रहा होता है, उसमें पहले जो उसके स्टेप्स हैं, नंबर 1 द LPS विल रिलैक्स, then the preseptal fibers of the orbicularis muscle are going to contract. The upper eyelid has to move down, and the lower eyelid moves little medially, and the eyeball rotates upwards. Rotation of the eyeball upwards, इसको हम Bell's phenomenon कहते हैं। Spontaneous blink हर समय हो रहा होता है और इसका मेजर फंक्शन है कि टीयर फिल्म को दोबारा से स्प्रेड करे, आई को मॉइस्ट रखे, और उसी दौरान वो टीयर्स की ड्रेनेज भी होती है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद हम लैक्रिमल अपरेटस के बारे में बात करते हैं, जिसका पहला 2 मेन फंक्शन है, एक तो टू सिक्रीट द टीयर्स एंड द अदर इज टू ड्रेन देम। जो हमारे आई में मेन ग्लैंड है और जो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, वो एक्वस पार्ट सिक्रीट करती हैं, गॉबलेट सेल्स म्यूसिन बनाते हैं, और म्यूबेन ग्लैंड्स हैव टू दे सिक्रीट द लिपिड पार्ट ऑफ द टीयर फिल्म। नॉर्मल रेट जो प्रोडक्शन का है वो 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट के हिसाब से टीयर्स हमारे बन रहे होते हैं। सिक्रीशन 2 तरह का है, वन इज जब हमारी आंख में कोई स्टिमुलस नहीं है, हम नॉर्मल एक रूम में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो बेसिक सिक्रीशन जो हर समय चल रहा है, और जो दूसरा है जो बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स सिक्रीशन। एक मिनट मैडम, एक जयपुर से कॉल है। यहाँ जयपुर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जो भी मैम ने स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग की जो स्लाइड दिखाई है, हाँ जी, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रीसेप्टल ऑर्बिकुलर फाइबर्स है, उसकी जगह प्रीटार्सल आना चाहिए या प्रीसेप्टल आएगा, कंफर्म नहीं मैम। अभी क्लैरिफाई कर दो। दे आर प्रीसेप्टल फाइबर्स। हेलो
You go and check the book. मैम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रीसेप्टल ऑर्बिकुलर फाइबर, प्रीसेप्टल फाइबर्स हैं वो, इसकी जगह प्रीटार्सल। नहीं, they are preceptal fibers. They are preceptal fibers. Please go back and check. चलिए ये देख लीजिए, अगर किताब में गलत दे रखा देन विल वेरीफाई एंड लेट यू नो इन नेक्स्ट सेशन। हाँ, we will note it down. You also go and check it. ठीक है? Can we go further? यस। I think, then there is a peripheral reflex. आपको मैंने अभी पहले बताया कि एक हमारा बेसिक सिक्रीशन है और एक रिफ्लेक्स सिक्रीशन है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है। अभी इसमें रिफ्लेक्स सिक्रीशन में भी दो पार्ट्स हैं, एक पेरिफेरल रिफ्लेक्स है और एक सेंट्रल रिफ्लेक्स है। पेरिफेरल मीन्स व्हेन देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ फिफ्थ नर्व, फर्स्ट डिवीजन, दैट इज द ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ फिफ्थ नर्व, जो कॉर्निया को सेंसरी सप्लाई पहुंचाती है। जब वहां पे कोई स्टिमुलस आता है और उसकी वजह से जो टीयर सिक्रीशन होता है, दैट इज अ पेरिफेरल रिफ्लेक्स। एंड इफ देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ द रेटिना because of a very bright light or there's a psychogenic event, that is the emotional aspect, then the tears are secreted through the central reflex. Then to tell you about certain details of the precorneal tear film, it is usually we call it tear film, but to be very specific, it is the precorneal tear film. As I've already told you, just to revise, इसके तीन parts हैं, outer, middle and inner. Outer layer is lipid layer from absorbent glands. Function is to decrease the evaporation of aqueous layer, because पानी है तो जल्दी उड़ जाएगा, but उसके ऊपर अगर लिपिड है तो पानी की evaporation कम हो जाएगी. And it maintains the stability of tear films, ताकि आंसू हमारे upper lid की edge के से बाहर ना आ जाएं. So their main function is to decrease the surface tension, and that is how they maintain the film inside the lids. The middle layer is aqueous layer or the watery layer, derived from lacrimal glands. When I talk of lacrimal glands, I am talking of all the glands, that is the main lacrimal gland, the accessory glands of Krause and Wolfram. All the three together I am talking. And the aqueous layer is supplying nutrients to the cornea, that is the main function. And the inner layer is the mucin layer, which is derived from goblet cells. I have already told you that cornea is hydrophobic. It fears water. वो पानी से दूर भागना चाहती है. ऐसे में म्यूसिन लेयर का फंक्शन है कि वो उसको हाइड्रोफिलिक बनाए, so that cornea starts loving water and then the aqueous layer can spread on it. Otherwise वो ब्रेक कर जाएगी छोटे छोटे टुकड़ों में. ये डायग्राम मैं आपके लिए कहीं से लेके आई हूँ ढूंढ के. ये देखिए, इसमें थोड़ा सा जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, यू कैन सी दी लिपिड लेयर थोड़ी, इट्स नॉट वेरी थिकनेस उसकी कम है. एक्वस लेयर मेन वॉल्यूम बनाता है, दिस इज अ थिक लेयर. एंड देन द म्यूसिन लेयर. एपिथेलियम के जो सेल्स हैं उनमें ये जो माइक्रोविलाए हैं, उनके बीच में ये म्यूसिन लेयर किस तरह से जैसे उंगली में उंगली फंसा ली हो, इस तरह से टाइटली वो एडेरेंट होती है, तभी वो फिल्म स्मूथ और यूनिफॉर्म बनती है. और फिर उसके ऊपर आपकी एक्वस लेयर जो है वो स्प्रेड कर सकती है. एक ये डायग्राम देखिएगा, इसमें थोड़ा और मैग्नीफाई किया हुआ है. ये कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स हैं और ये इसके माइक्रोविलाए हैं, और ये म्यूसिन है जो उसके अंदर इस तरह से फिट हो जाता है. ये एक फोटोग्राफ है जिसमें हम आपको टीयर फिल्म ब्रेकअप दिखा रहे हैं. इसमें आई को हमने फ्लोरेसीन डाई से स्टेन किया हुआ है, और अगर ब्लिंक ना करें तो कितनी देर में ये टीयर की जो फिल्म है ये ब्रेकअप हो जाएगी, उसको हम टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम कहते हैं. आप देखिए, इसमें धीरे धीरे ये वैक्यूल्स बनने शुरू हुए हैं और धीरे धीरे ये पूरी फिल्म ब्रेकअप करेगी. जैसे ही ये टीयर फिल्म ब्रेकअप हो जाती है, हमारी इमेज में ब्लरिंग होती है, हमारा रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, एंड वी ब्लिंक सो दैट दी फिल्म इज अगेन यूनिफॉर्म. ये टीयर ड्रेनेज, दिस इज अगेन अ रिविजन that because of the action of gravity, the capillary action and the eyelid movements, there is drainage of tears, and they all combine to form a lacrimal pump. With every blink, the tears are drained into they go through the both canaliculi into the sac and then into the nasolacrimal duct. Just to tell you a few things about how can your tear film get disturbed. So the dysfunctions of the tear film: if there is deficiency of mucin, if there is deficiency of the aqueous layer,
or there is any abnormality of the lipid layer, or if the lids and cornea are not, they are diseased because of any reason, they would be included in the surface abnormality. So all the four, or any of the four, or two of the four, any combination would be there in a given patient, will cause a tear film dysfunction leading to dry eye. There are lots of tests given in your book. If you read, you have to remember all the names, because if you're answering in theory, you have to write down the names. But practically important and practically that we are doing every day are these two tests. One is the Shermer's test, which basically finds out how much is the aqueous layer being secreted. If it is less than the normal, which means the patient will need some supportive treatment for that. And the other is the TBUT, or the tear film breakup time, wherein we find out whether the mucin layer is sufficient enough and quality wise. Is it able to make the cornea hydrophilic or not? So that has to be taken care of again by treatment. Now just to summarize the treatment of the dry eyes, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों की लुब्रिकेंट्स, जिनको हम टीयर सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं. अब तक आप लोग इतने दिनों में समझ ही गए होंगे कि आपके ओपीडी में आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्पेशली अब जैसे गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है. हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट्स को भी बताते हैं कि पंखे की हवा या एसी या कंप्यूटर पर बैठना, इन सब चीज़ों से आपकी आईज ड्राई होती हैं, और लुब्रिकेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग दैट ड्राई आई. टीयर्स कैन बी प्रिजर्व्ड so that उनका लॉस हम कम कर सकते हैं. We can perform certain surgeries if the disease is advanced. और इनमें से लिड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि मेवोवन ग्लैंड डिसफंक्शन जो है वो लिड हाइजीन की वजह से अफेक्टेड होता है. टीएस को कैसे मैडम प्रिजर्व कर सकते हैं? टीयर्स को प्रिजर्व करने के लिए इनकी बुक्स में कई चीज़ें दी हुई हैं. उसमें से कॉमन चीज़ें ये हैं कि हम कैनालिकुलर प्लग्स यूज कर सकते हैं. पंक्टल प्लग्स कहते हैं उन्हें हम. पंक्टल अक्लूजन, विच मीन्स हम अपर और लोअर पंक्टम को अक्लूड कर दें ताकि वहाँ से ड्रेनेज ही कम हो जाए. या हम पेशेंट को बोलें बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस पहन ले कि इवेपोरेशन ना हो. देयर आर सर्टेन गॉगल्स वेयर इन वी कैन स्टॉप द इवेपोरेशन ऑफ द टीयर्स. सो वन ऑफ द मेथड्स कैन बी टोल्ड टू योर पेशेंट दैट whatever tears you are producing should be preserved as far as possible. तो उसमें डायरेक्ट पंखे के नीचे बैठना या डायरेक्ट कूलर के सामने बैठना हम लोग मना करते हैं. Then coming to aqueous humor. Aqueous humor basically चूंकि हमारी eyeball अंदर से hollow है, it's like a balloon filled with a fluid. So the balloon will collapse if the enough fluid is not inside. You also understand that if you fill, आप किसी बलून में पानी भर लें और उसमें पानी के अमाउंट के हिसाब से बलून की रिजिडिटी या सॉफ्टनेस होगी, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें चाहिए एक्वस ह्यूमर का हमारी आई में, जो एक रिक्वायर्ड प्रेशर दे, जिससे की वजह से आई की एक शेप मेंटेन रहे. उसको हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं. सो एक्वस ह्यूमर ही है जो हमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देता है. The other functions are to provide nutrients and oxygen to the lens, iris and cornea. It provide clear media for refraction. अगर आपके aqueous humor बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है, जैसा कि कुछ बीमारियों में हो जाता है कि वो टर्बिड हो गया है या हम बोलते हैं प्लाज्माइड aqueous हो गया है क्योंकि उसमें सेल्स लीक कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, तो आपका रिफ्रैक्शन अफेक्टेड होगा ना, क्योंकि आपका मीडिया क्लियर नहीं है. Then it also removes the metabolic waste. एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन को लेकर के अभी तक बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात की गई है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑल दैट, बट जो मोटे मोटे 3 मेथड्स हैं जिनकी वजह से एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है, उसमें एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर. जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो कैपिलरी वॉल हैं, विच आर बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अंडर द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. अगर आप लोगों ने जनरल वो पढ़ा है एनाटमी, तो किडनी में जो ग्लोमेरुलस है, वहाँ पे भी आर्टीरियल साइड से जब कैपिलरीज बनती हैं वहाँ प्रेशर हाई होता है, और वही कैपिलरी बाद में वीनस साइड की तरफ
चली जाती हैं वहाँ पे, और अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रेशर कम है तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। द अदर इज डिफ्यूजन। यू ऑल नो कि जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ से मूवमेंट्स होंगी टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द लेसर कॉन्सेंट्रेशन। तो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से मूवमेंट्स होती हैं एक्वस ह्यूमर जो पोस्टीरियर चेंबर में है, तो ऐसे डिफ्यूज करके एक्वस बनता है और पोस्टीरियर चेंबर में आता है। द थर्ड मेथड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब it is against the concentration gradient. From the lower concentration, things are pushed towards the higher concentration by spending energy. So here there is an energy dependent pump, ATPs are spent and it is known as active transport. ये डायग्राम आप देखें, थोड़ा मैग्नीफाइड है। ये सिलरी बॉडी में मसल है और ये वो सिलरी प्रोसेसेस हैं जो पार्स प्लैकेटा में हैं। एक आप प्रोसेस को देखें तो उसके अंदर में ये ब्लड वेसल है और अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन यहाँ पे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे कि एक्वस बन के फिर पोस्टीरियर चेंबर में आ जाता है। Now how does the aqueous move once it is formed? There is a thermal flow and there is a bulk flow. Thermal means cornea being the cooler part and the iris being the warmer part. गर्म से ठंडी की तरफ जाने का एक नियम है, नेचुरल नियम। इस तरह से एक्वस जो है वो फ्लो करता है टुवर्ड्स द कॉर्निया एंड इट कम्स इनटू द एंटीरियर चेंबर फ्रॉम द पोस्टीरियर चेंबर थ्रू द प्यूपिल। ये आप ऑलरेडी जानते हो। बल्क फ्लो विच इज प्रेशर डिपेंडेंट, जो हमारा ट्रेबेकुलर मेशवर्क के थ्रू होता है। जब एसी में प्रेशर बढ़ जाता है, एक्वस ह्यूमर कलेक्ट हो गया है, तो वहां से वो मेशवर्क के थ्रू फिल्टर होकर निकल जाता है। दूसरा है प्रेशर इंडिपेंडेंट मेथड, जिसमें वो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो के जरिए से हमारा एक्वस ह्यूमर आई से बाहर निकल के किसी भी वे से जाए, अल्टीमेटली वो वेन की तरफ चला जाता है। जो एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन है वो ब्लड से छन के हुआ, ब्लड से छना फ्रॉम द आर्टेरियल साइड एट द कैपिलरी लेवल, एक्वस ह्यूमर बना, पोस्टीरियर चेंबर में गया, एंटीरियर चेंबर में गया थ्रू द प्यूपिल। उसके बाद दो तरह से आउटफ्लो होता है, द कन्वेंशनल आउटफ्लो या जो रूटीन आउटफ्लो है दैट इज थ्रू द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। जिसको हम अनकन्वेंशनल मेथड कहते हैं वो है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। दोनों ही जरियों से इट हैज टू फाइनली गो बैक टू ब्लड बट ऑन द वीनस साइड। द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज 15 to 20 millimeters of mercury. It is necessary to maintain the optical properties of the eye, which means if the pressure rises, patient will have problems. जिसमें से एक चीज एटलीस्ट आप ग्लोकोमा नाम की जो बीमारी है वो प्रेशर बढ़ने से होती है। काला मोतिया जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, कहीं पे उसको संबल बाई भी कहते हैं। हमारी बॉडी में एक इंट्राओकुलर प्रेशर 24 घंटे एक सा नहीं रहता है। एक उसमें डायनल वेरिएशन, जो मैंने डीवी लिखा है, ये है डायनल वेरिएशन। पूरे दिन में 24 घंटे में हमारा आईओपी जो है, प्रेशर जो है वो मॉर्निंग के टाइम यूजुअली हाई रहता है और शाम के समय थोड़ा सा कम होता है। ये एक रूटीन पैटर्न ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। हम अपना इंट्राओकुलर प्रेशर के जो मेजरमेंट्स के तरीके हैं उनमें डिजिटल, जिसमें हम उंगलियों के जरिए से पता लगाते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली जब ओपीडी में करके दिखाएंगे सीनियर्स तो आप सीखिएगा। एक मैनोमीटर है जो हम लोग यूजुअली यूज नहीं करते हैं, इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू। टोनोमीटर इज दी जिसको हम लोग यूज करते हैं आमतौर पे। एक शॉर्ट टोनोमीटर है जो इंडेंटेशन होता है जिसका प्रिंसिपल। दूसरा है एप्लिनेशन टोनोमीटर, जिसमें गोल्डमैन वाला सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास एयर पफ टोनोमीटर्स या पल्स एयर्स हैं, जिसमें नॉन टच टेक्निक जो होती है, जिसमें हम कॉर्निया को टच नहीं करते हैं। नाउ आईओपी में हमारा जो इंक्रीज है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द आउटफ्लो। यूजुअली यही कॉमन कॉज है कि हमारा आउटफ्लो कहीं रुक रहा है, चाहे कन्वेंशनल मेथड से चाहे दूसरी मेथड से, और उससे धीरे धीरे आईओपी बिल्डअप हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आईओपी को लोअर करने के लिए या तो हम एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को ही कम कर दें या हम उसके आउटफ्लो को बढ़ाएं। तो इस तरीके से हम कुछ मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। आप किताब में दिया है, यू कैन रिमेंबर 2-3 नेम्स फॉर एवरीथिंग फॉर योर एग्जाम्स। देन कमिंग टू द प्यूपिल, पहले भी मैंने आपको बताया ना, वो जो आरिस के बीच में एक छोटा सा होल है या छेद है, विच इज कंट्रोल्ड बाय दी
स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली मसल्स उसका साइज कंट्रोल करते हैं, सो दैट द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग द आई इट इज sufficient enough for vision and not harmful to the retina or macula. Then pupil will also help in the increasing the depth of focus for near vision. The normal size is 2 to 4 millimeter और इसकी जो मसल्स हैं छोटा करने के लिए, कंस्ट्रिक्ट करने के लिए स्फिंक्टर है और इसको डायलेट करने के लिए डायलेटर है. अगर अभी कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी. ठीक है, बिल्कुल. लाइट रिफ्लेक्स के बारे में. हाँ, लाइट रिफ्लेक्स, जब हम लाइट आंख में लाइट डालते हैं तो हमारी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है. दैट इज द लाइट रिफ्लेक्स. दैट इज द प्यूपिल रिएक्ट्स टू लाइट द मोमेंट you shine light in the eye. The pupil is going to constrict because the light is too much more than required by the eye. So the reflex would be to make the size smaller. ये हमने उसमें भी देखा, जैसे हम सामने से कोई कार उस पे हाई बीम पे आ रही है तो आंख एकदम चल. इनफैक्ट उसमें तो आंख जो बंद हो जाती है वो डैजल रिफ्लेक्स का एक एग्जांपल है कि बहुत तेज लाइट जली तो हमने एकदम से आंख बंद कर ली. कभी वो फ्लैश लाइट होती है या आगे की गाड़ी, दैट इज द डैजल रिफ्लेक्स, हम आंख बंद ही कर लेते हैं. और अगर आप किसी की आंख में बोलें कि उसको एक तरफ देखने को कहें और उसमें टॉर्च डालें तो लाइट डालें तो पीपल कंस्ट्रक्ट करेगी और वो आपको दिखेगी. डायरेक्ट रिफ्लेक्स वो वाला है जिसमें हम जिस आई में लाइट दिखा रहे हैं उसी आई की पीपल को कंस्ट्रक्ट करती है. दिस इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्स. द अदर इज इनडायरेक्ट और कंसेंशुअल, जिसमें लाइट इज शोन इन वन आई एंड द पीपल ऑफ द अदर आई कंस्ट्रक्ट्स. जो आप पाथवेज अगर समझते हो तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एवरीथिंग जो भगवान ने बनाई है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है. और जब हम वो समझ जाते हैं तो हम वी स्टार्ट वंडरिंग कि मतलब गॉड हैज क्रिएटेड सच अ थिंग कि एवरीथिंग हैज अ सिग्निफिकेंस. कुछ भी भगवान ने फालतू नहीं बनाया है. लाइट दिखाते हैं राइट आई में, उसकी पीपल तो कंस्ट्रक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिफ्लेक्स, बट द पीपल ऑफ द लेफ्ट आई विल ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एंड दिस इज द कंसेंशुअल और द इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स. जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, इनके जो पाथवेज हैं, इनमें एक आफरेंट पाथवे होता है और एक इफरेंट होता है. मतलब पूरे रिफ्लेक्स के दो हिस्से मान लीजिए. जो ब्रेन की तरफ जा रहा है वो आफरेंट है और जो ब्रेन से मैसेज लेके आ रहा है वो इफरेंट है. मैं आपको पाथवेज को थोड़ा सिंपल करके बता देती हूँ. व्हेन यू रीड द बुक you will understand the diagram also, because you have exams में diagrams are supposed to be made when the questions are asked, so please study the diagrams. लाइट रिफ्लेक्स का जो आफरेंट है वो कहाँ से शुरू होगा? रेटिना से शुरू होगा, क्योंकि लाइट पड़ी रेटिना पे, ऑप्टिक नर्व से मैसेज ऊपर गया, क्याज्मा, ट्रैक्ट, दैट जेनिकुलेट बॉडी, वहां से कुछ फाइबर्स प्रीटेक्टल एरिया में जाते हैं जो प्यूपिलरी रिएक्शन से रिलेटेड हैं. बाकी सारे आपके ऑप्टिक रेडिएशन बन करके स्ट्रैट एरिया में चले गए. जो प्रीटेक्टल एरिया में गए, अब आपका मैसेज पहुंचा कि भाई वहां पे हमारी लाइट पड़ी, लाइट इज मोर देन रिक्वायर्ड. तो इफरेंट कहाँ स्टार्ट होगा? इसका जवाब शुरू होगा, एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है हमारा, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, विच इज क्लोज टू द थर्ड नर्व. अब वहां से जो फाइबर्स निकल रहे हैं ये मैसेज लेके कि पीपल को कंस्ट्रक्ट करना है, दे विल क्रॉस ओवर, विच मीन्स फ्रॉम द राइट साइड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्रॉस ओवर टू द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड की न्यूक्लियस से फाइबर्स जो निकलते हैं वो राइट में क्रॉस ओवर करते हैं. और उसके बाद ये फाइबर्स थर्ड नर्व के साथ साथ आई में आते हैं. मैं थोड़ा सा आपको ट्रेस कर देती हूँ बात. ये थर्ड नर्व के साथ साथ आते हैं, पेरीफेरी में रहते हैं. यूजुअली आई में एंटर करते ही जैसे ही हमारी ऑप्टिक नर्व दो डिवीजन में डिवाइड होती है, ये इंफीरियर डिवीजन के साथ चले जाते हैं. उसके बाद नर्व मिडिल रेक्टस को जा रही है, इंफीरियर रेक्टस को जा रही है, ये उन सबको छोड़ते हुए उस नर्व के साथ जाते हैं जो इंफीरियर ओब्लिक की तरफ जा रही है. वहां से ये फाइबर्स सिलियरी गैंग्लियन में रिले करते हैं. सिलियरी गैंग्लियन से अब पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो निकलेंगे वो शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के जरिए से दे गो टू द स्फिंक्टर प्यूपिली एंड देन द स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स. तो आप देखिए कितना लंबा चौड़ा पाथवे और कितनी जरा सी देर में पूरा हो जाता है. अब ये जो क्रॉस ओवर हुआ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का,
जब एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कंसेंशुअल रिफ्लेक्स। तो अगर आप एक आई में लाइट डालेंगे तो उस आई में तो कंस्ट्रक्शन होगा ही, लेकिन इसकी तरफ से जो मैसेज ऊपर गया तो जो वहां से जवाब शुरू हुआ वो तो क्रॉस ओवर कर गया, तो लेफ्ट आई भी कंस्ट्रक्ट करेगी। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब डिजीज पेशेंट आता है कि डायरेक्ट है, कंसेंशुअल एब्सेंट है, कंसेंशुअल प्रेजेंट है, डायरेक्ट एब्सेंट है। इन सबकी इंटरप्रिटेशन आपको बीमारी को क्लिक करने में हेल्प करती है। सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड, इट मे टेक लिटिल मोर टाइम। हमको इनकी जानकारी है रिफ्लेक्सेस की, तो देन जब हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्सेस देख रहे हैं, तो उसमें हमारे को डायग्नोसिस करने में बहुत मदद मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब एग्जामिन कर रहे हो पेशेंट को डायलेट करने से पहले प्लीज हम पिपुलरी रिफ्लेक्स दोनों आंखों का अलग अलग ठीक से देखें और उसको रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि एक बार डायलेट कर दिया उसके बाद अब आपके पास कोई वो नहीं है, एविडेंस नहीं है कि भाई कैसी पीपल थी, कैसे रिएक्शन था। तो दैट हैज टू बी डन बिफोर वी ऑर्डर द डायलिटेशन ऑफ द पीपल्स। तो ये विद्यार्थी जो मैं आपको बता रहे हैं जो फिजियोलॉजी के बारे में, इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है या जो क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं उसका हम जो प्रैक्टिकल करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं उसमें इसका क्या महत्व है और उसमें किस तरह की भूमिका है, डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट एंड किस तरह की भूमिका ये जो है ये बनाते हैं। और जैसे मैडम बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ केसेस में भी ये हेल्प वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा पिपुलरी रिफ्लेक्स है वो है नियर रिफ्लेक्स, जिसमें कि पीपल विल कंस्ट्रिक्ट ऑन कन्वर्जेंस, दैट इज द कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स। द अदर इज पीपल विल कंस्ट्रिक्ट ऑन अकोमोडेशन, दिस इज द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो साइड बाय साइड। इनका पाथवे जो है वो ऊपर स्टार्ट होता है। सो द पाथवे इज बेसिकली स्टार्टिंग इन द ब्रेन। आपकी रेटिना पे जो ब्लड इमेज है वो जब विजुअल कॉर्टेक्स में एनालाइज की गई कि द इमेज इज ब्लड, then the visual fibers send the message to the Edinger-Westphal nucleus of both the sides. See that the image is blurred, so please make the image clear. उसके बाद का pathway is same as the light reflex and the pupil will constrict to give you better focus and amount of light would be controlled and the image would be clearer. मैं आपको इम्पोर्टेंट पिपुलरी डिफेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। मार्कस गन प्यूपल या रिलेटिव अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट, इसको हम आरएपीडी करके बोलते हैं, बट आप फुल फॉर्म भी याद रखें, इट्स रिलेटिव अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट। जो भी आई जिसमें विजन कम है ऑप्टिक नर्व डिजीज की वजह से, द आई इज पार्टली ब्लाइंड और टोटली ब्लाइंड, and if you show the light in that eye, the people will not constrict. But अगर आप normal eye में टॉर्च डालेंगे तो affected eye constrict करेगी। मैं फिर से रिपीट करूंगी इसको अभी। But when the light is shifted to the affected eye, the pupil dilates. Now you just remember, अभी रिफ्लेक्स हमने किए, जिस आई में दिखता है उसमें हमने लाइट डाली तो पिपल उस आई की तो कंस्ट्रिक्ट करेगी ही, और कंसेंशुअल की वजह से दूसरी में भी कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। लेकिन जब आप इस लाइट को अफेक्टेड यानी कि ब्लाइंड आई की तरफ शिफ्ट करेंगे, उसकी पिपल डायलेट कर जाएगी, जो पहले तो कंस्ट्रिक्ट कर गई थी, पर अब इस आई से तो अफरेंट जा ही नहीं रहा है बिकॉज इट इज ब्लाइंड, सो इट विल डायलेट। दिस इज द पिपुलरी डिफेक्ट। इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड चेक्ड बिफोर वी प्रोसीड टू फर्दर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसका भी इम्पॉर्टेंट है bearing on the diagnosis. The other is the Argyll-Robertson pupil, और जिसको हम ARP शॉर्ट में कहते हैं। This is basically light near dissociation. अब इसको आपको याद करने का एक मैं तरीका बताती हूँ। ARP में ही इसका आंसर है। ARP accommodation reflex present, और इसको उल्टा कर लीजिए, pupillary reflex absent. So now you can elaborate on it कि इसमें क्या होता है। ठीक है, मतलब मैं आपको बीच बीच में हिंट दे दूंगी जहाँ थोड़ा याद करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। इसमें अगर मतलब अगर इनको याद करना हो कि यार इसी से निकल जाएगा। तो ARP रिफ्लेक्स प्रेजेंट एंड पिपुलरी रिफ्लेक्स एब्सेंट, जिसमें होगा दैट विल बी ARP। हाँ, इनको याद रहेगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसमें हेल्प करेगा। There is another thing which is known as Edie's pupil.
इसमें लाइट रिफ्लेक्स जो है वो एक आई में एब्सेंट होता है और उसकी पिपल थोड़ी सी डायलेटेड रहती है. इट इज ऑलवेज बिगर देन दी अदर साइड पिपल जो नॉर्मल है. We have not understood the cause, but it is said by most of the people who have done research on it that it is denervation hypersensitivity. Denervation hypersensitivity, which means there is something wrong with the nerves and it is not responding to the light. But अब ये टेस्ट हम लोग अक्सर ओपीडी में करते हैं अगर हमें ये डायग्नोज करना हो कि हाँ वाकई पेशेंट को एडीज पिपल है और कुछ नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स इज abnormal. So we dilute the pilocarpine eye drops. We make the concentration of 0.125%. आपकी किताबों में 1/8 करके दिया होगा परसेंट करके. इस वाले को रिस्पॉन्ड करती है पीपल और कंसिडर कर जाती है. इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू 1% और 2%, but it will, since it is a denervation hypersensitivity, it will respond to 0.125% pilocarpine drops, which we make in the OPD when we have to diagnose such cases. Then another one important is Horner's pupil. On one side, because of some reason, if the sympathetic outflow is interrupted, हमारे head and neck area को जो sympathetic supply है, it is from the superior cervical ganglion present in the sympathetic chain. It is present on both sides of the vertebral column. I'm not going into the detail of the anatomy, but just remember कि if something between this and the eye is affected, then the उस वाले पार्ट को sympathetic supply कम हो गई है, it will lead to meiosis, because people अब डायलेट नहीं करेगी तो छोटी हो जाएगी तो meiotic pupil हो जाएगी. आपकी चूंकि मुलर मसल भी सिंपैथेटिक सप्लाई से काम कर रही है, वो ना होने से आंख थोड़ी सी गिर जाएगी, पलक गिर जाएगी, यानी कि टोसिस हो जाएगी. आई का जो पोजीशन है आई ऑर्बिट में, थोड़ी सी आई अंदर की तरफ चली जाती है, इसको हम बोलते हैं एनॉप्थेल्मोस. वो वाला साइड थोड़ा सूखा रहता है, वहाँ स्वेटिंग नहीं होती है, सो वी कॉल इट एनहाइड्रोसिस. और अगर हम इसमें कोई मीडियाटिक डालें तो पीपल का डायलिटेशन जो है वो बहुत ही हल्का होता है, वेरी स्लो. मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ सर? मैं अभी 2 मिनट और हैं. 2 मिनट और हैं, बिकॉज इसमें नया नहीं शुरू करना चाहूंगी, बिकॉज इट टेक टाइम. तो मे भी हम ऐसा कर सकते हैं, 2 मिनट में हम रिवाइज कर सकते हैं और जो आपने बताया, और अगर कोई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकते हैं. मैं 2 मिनट में इनफैक्ट वो वाला पार्ट इनको दोबारा से एक बार बताना चाहूंगी, वो इम्पोर्टेंट है. ये समझना कि हमारा डायरेक्ट और कंसेंशुअल जो है वो एक में है और एक में नहीं है, ये थोड़ा सा उन्हें कैसे देखना है, उसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जिस आई में लाइट डाल रहे हो, दोनों आईज के बीच में आप हाथ या कोई कार्डबोर्ड लगा लीजिए, और यू हैव टू यूज 2 टॉर्चेस फॉर दैट. एक टॉर्च जो आप राइट आई में दिखा रहे हैं पिपुलर रिएक्शन देखने के लिए, और एक दूसरी टॉर्च जो थोड़ा नीचे से, दोनों में एक साथ आपको देखने में मदद करे कि डाली इसमें और ये अदर आई कंसिडर करी. बीच में हम सिर्फ एक गैप या बैरियर इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि हमको कंसेंशुअल देखना है, तो हम ये चाहेंगे कि दूसरी आई में लाइट ना पड़े, ताकि उसका आफरंट हम ब्लॉक कर दें. और जो आई ब्लाइंड है उसमें डायरेक्ट रिएक्शन एब्सेंट होगा, लेकिन उसमें लाइट डालने से दूसरी में भी कंसेंशुअल एब्सेंट होगा. ये देखिए, समझिए आप, अगर ब्लाइंड आई में लाइट डाली तो उसमें डायरेक्ट एब्सेंट, क्योंकि आफरेंट गया, क्योंकि ऊपर मैसेज पहुंचा ही नहीं तो इफरेंट आया ही नहीं, तो दूसरी में भी कंसेंशुअल एब्सेंट होगा. लेकिन नॉर्मल आई में डालेंगे तो उसमें डायरेक्ट भी प्रेजेंट है, और इसमें लाइट डालेंगे तो दूसरी में कंसेंशुअल भी प्रेजेंट होगा. ये चीजों में रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग खुद से बैठ के इसको थोड़ा सा सोचें और समझ लें एक बार कि कैसे हम ये बात जज करते हैं कि इसमें डाली और दूसरी में हमने रिएक्शन देखा, और दूसरी में डाली इसमें देखा. तो समझने की बात यह है कि जिस आई का अफरंट ब्लॉक है उस आई में तो डायरेक्ट भी नहीं होगा, कंसेंशुअल भी नहीं होगा, उसकी वजह से दूसरे में नहीं होगा. लेकिन नॉर्मल में डालेंगे तो नॉर्मल में डायरेक्ट भी है और उसकी वजह से अफेक्टेड आई में कंसेंशुअल भी होगा, क्योंकि उसमें लाइट तो कंसेंशन के लिए तो मैसेज नीचे आ ही रहा है. इसको समझने में थोड़ा देर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. हम सब इसी दौर से गुजरे हैं, शुरू में हमें भी दिक्कत होती थी. जाहिर है पढ़ते पढ़ते समझ आ जाता है, करते करते. एंड स्टूडेंट्स
डॉक्टर नीलम अस्थाना ने हमारे को आज बताया कि ऑकुलर फिजियोलॉजी के बारे में, आईलिड्स के बारे में, पिपलरी रिफ्लेक्सेस के बारे में और कई लाइट रिफ्लेक्सेस जो है और कुछ एक उनके जो व्यवहारिक जीवन में जो उसका यूटिलाइजेशन है उसके बारे में भी बताया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और 15 मिनट बाद हम दोबारा आगे इसी चर्चा को फिजियोलॉजी ऑफ द आई को कंटिन्यू करते हुए करें। मीनवाइल अगर आपके कोई सवाल हों तो आप हमारे को ड्यूरिंग ब्रेक फैक्स भी कर सकते हैं या जब हम वापस आएंगे तो उसके बाद आप सवाल पूछ भी सकते हैं।